So just we were discussing today that the basic features of our constitution. First point is unique. Our constitution is unique. I'm repeating again. It is unique because we have adopted the best features of the constitution of several countries of the world. For example, we have adopted the constitution. Most part of our constitution is the British constitution only. And then some features of our constitution, like the written part, is American constitution. British constitution is not a written constitution. Our constitution is written constitution. That means we have learnt it from USA. USA's constitution is written, and we have also written our constitution. Likewise, the fundamental duties, we have adopted it from USSR. Now it is Russia. So fundamental duties of the citizen, we have adopted it from USSR, Russia. Then this provision of Supreme Court, we have adopted it from the US. Supreme Court should be there. The rule of president rule is from US. The federal structure of our country, it is all from United States. Then the directive principles, we have learned it from Ireland. Some other things from Canada, like Union of States. India is also Union of States. When we say Jammu, Kashmir, Himachal, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, so India is Union of States. So Canada is also Union of States. So we have adopted that feature from Canada. So our constitution is unique because it has the best features of different constitutions of the world. Next point is lengthiest constitution in the world. As discussed earlier in the morning class also, we have written the longest constitution in the world. And the constitution has the detailed description of all the institutions, all the persons who are actually in the formation of the government and in the running of the institutions in our country, their powers, their facilities, their provisions, their election, everything is written in our constitution. So it is the longest constitution in the world, which is yet another unique feature and very important feature of our constitution. And the constitution has 22 parts, 395 articles, and 12 schedules that you will learn detailed in higher classes about each of those parts and schedules and articles. Rishabh Sharma, if you have raised your hand, you can write in your chat box what is your problem. You can write in your chat box if there is any problem. So, second feature is very simple, that we have the longest constitution in the world, and it has 22 parts, 395 articles, and it has 12 schedules. Rishabh Sharma has raised hand, and if you have any problem, you can write in your chat box. Enact means to bring into effect. An act is now becoming a law. That means it is enacted. All right. Suppose I ask you to read one paragraph. Okay, you are reading. Means you are following my instruction. Then I ask you to write one question. Then you are writing the answer. That means you are following the orders. Likewise, in our country also, a law is being made, and then that it passed in the parliament at New Delhi, and then the whole country is following that law. So that law is an enactment. Aspiration means dream. Every person think and imagine and have a kind of hope. While living in our country, we have several dreams to fulfill. We have several desires in our life, that what we want to become in our life. And the country must provide that much opportunity. So that is aspiration. Okay, any other doubt you can mention in your chat box. Third feature is that the written constitution, just now I have told you that
we have adopted the written part of our constitution from United States. In USA, they have a written constitution. We learned it, and we have also decided that we have a constitution in a written form. That's also our constitution is a written constitution, and it has taken more than 2 years, 11 months, and 18 days to complete the drafting of the constitution. Okay, one question is, what is difference between community and committee? So, community means simply a group of people. Community means a group of people. All right. Village community is there, but a committee has a particular purpose. A committee, suppose housing committee, electricity committee, water department, or electricity department have their own different committee. And those committees have a particular member who look after a particular or specific work. And community simply means a gathering, a group of people. A community can be on the basis of a religion, a community can be on the basis of language, a community can be on the basis of a village or territory or occupation like that. So that a village committee, community is there, having only village people within them. Fishing community is there. Then a mountain area, there are tribal community. So community means group of people. Now I am coming to the fourth feature, that our constitution is rigid and flexible. Rigid means very steadfast, very hard and fast. The rules are fixed. They will not be changed easily. Rigid means something which cannot be changed easily. And the opposite is flexible, something which rigid can be toughness, strictness, all right, steadfastness. Very good. Hardness, toughness, very good. So rigid means in this context, in constitution, a rigid constitution means something which is written in 1947 and it can never be changed. So should we have a constitution which can never be changed? Suppose if we make law today and after 100 years also that law cannot be changed, do we want such kind of rule? Rishabh say yes. Or you want some flexible rules? Now Rishabh said no. So if we as a person change in our life, suppose I am 15 years old, then 20, then 25, then 30, with my own change in age, with my own change in experience, I change decision. Therefore, our constitution has also adopted that the constitution can be rigid as well as flexible. We have a balance between rigidity and flexibility. It is not that every morning we will go and change the constitution. We will not play with the constitution. We will not change the constitution very frequently. But if there is an urgent necessity, if there is an imminent necessity, then we can change the constitution, and for that we can adopt the amendment. We can have some amendments. Now we delete our WhatsApp chat. We edit our WhatsApp chat. Like that, our constitution in the year 1947 was written, and with need and with the passage of time, as it was suitably thought about by the politicians of the past or today or in future, there is scope for some amendment or changes in the constitution. One example is that after independence, few banks were nationalized. The princely states were added to the Union of India. And after independence, the princely states were given some money, some stipend for joining India. So India was paying them some kind of extra money.
and India was obliged to them that, oh, you have done a great sacrifice, and in return we will pay you some money. Then the common people of our country, questioned about equality. If independent India is equal, then why citizen and princely states have different type of law? Why they should be given the money from hard-earned money of the people, common people? So after independence, we had the practice of paying some money to the princely state, then it was stopped. Now you tell me, is it correct or it is incorrect? टेल मी। जो राजा महाराजा थे वो इंडिया को ज्वाइन किया आजादी के बाद, भारत के साथ जब वो जुड़ गए, तो भारत सरकार उनको कुछ खर्चे देते थे, कुछ पैसे देते थे, ताकि उनके रॉयल स्टेटस मेंटेन हो सके। उनके जीवन में जो लग्जरी शानो शौकत थी, उनको मेंटेन करने के लिए भारत ने पैसे देने स्टार्ट कर दिए। क्या ये सही था? आंसर युवराज बोल रहा है नो। और कोई आंसर देना चाहते हो? अमन भी बोल रहा है नो, हंसिका भी नो बोल रहे हैं। तो हाँ, बहुत सारे नो है। जो राजा महाराजा थे, अगर वो मेहनत किए, पैसा कमाए, अगर वो अपना काम किए, मेहनत किए, तो वो अपना शानो शौकत जरूर मेंटेन कर सकता था। भारत में इसके लिए कोई पाबंदी, इसके लिए कोई रोकथाम नहीं था। लेकिन जस्ट बिकॉज दे वेर बिलोंगिंग टू द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश टाइम और बिफोर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब ये नहीं है कि देश के बाकी नागरिक का कोई वैल्यू नहीं है, और जो मेहनत से कमा रहे हैं पैसे, वो पैसे जो है कहीं और हम दे दे रहे हैं किसी और के लग्जरी के लिए। तो ये था हमारे देश में संविधान में बदलाव लाया गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रीवी पर्स। इसको क्या बोल रहे हैं? प्रीवी पर्स जो है, ये वर्ड है, ये यूज किया जाता है जिनको, जो डिजर्व भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार उनके पुराने महत्व को, पुराने उनके खानदानी जो कंट्रीब्यूशन है, उसको याद करके आज भी उनके वंश को ढो रहे हैं। तो मान लो कि जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद राजीव गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और एक जन और उम्मीद में लगे हुए हैं। एक ही खानदान के 3 जन प्रधानमंत्री है, चौथा उन्हीं के वंश का है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बहुत उम्मीद लगा के रखे हैं, एक पार्टी को लीड भी करते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है, जनता जिनको चुनेगी उनको पीएम बनाएगी। अब गवर्नमेंट मान लो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ, राहुल गांधी नाम नहीं लेना है बेटा, हमने नाम नहीं लिया है, हम केवल एक एग्जाम्पल दिए हैं। वो भी एक ऑनरेबल लीडर है, हम नहीं समझते हैं, लेकिन हो सकता है इंडिया के बाकी पार्लियामेंटेरियंस एंड पॉलिटिशियंस उनको बहुत हाई रेस्पेक्ट और हाई रिगार्ड करते हैं, लेकिन कॉमन पीपल उनको चुनाव में अभी तक जिताए नहीं है प्रधानमंत्री के रूप में। कांग्रेस बहुमत में नहीं आई है उनके बाद, और वो आज जो है फाइट करते हैं, ऑपोजिशन में है, लेकिन अभी रूलिंग पार्टी में वो नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट उनके लिए अलग से कुछ प्रीवी पर्स, उनके लिए अलग से कुछ फैसिलिटी देंगे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो हाँ, बहुत सारे नो आंसर है। तो राहुल गांधी के पास पूरा अपॉर्चुनिटी है कि वो कंट्री का पीएम बने, और बाकी सारे जनता उनको बेस्ट विशेस देती है। तो कैसे जीतेंगे? राहुल गांधी को शायद और पॉपुलर होना होगा, और मेहनत करना होगा, और डेवलपमेंट का रियल कुछ प्रोग्रेस और कुछ ना कुछ जो है प्लानिंग करके आना होगा, तब हो सकता है कि पीपल उनको ट्रस्ट करे और जिता दे। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, और एक कॉमन पीपल जो है पीएम बन सकता है, एक कॉमन पीपल इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है, जिनका आगे पीछे कोई गॉडफादर नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई बड़े आदमी का साथ नहीं है। और ये हुआ भी है। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इन लोगों के फादर जो है एकदम हम्बल सिटीजन थे,
और इन लोगों ने अपने मेहनत से कंट्री में राजनीति करके एक एक करके सीढ़ी चढ़ के आगे बढ़ा है। तो दैट इज डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो ये एक हो गया अमेंडमेंट, जिसमें हम रूल को चेंज कर सकते हैं। और ये अमेंडमेंट के 3 स्टेप है। कोई बता सकते हो तीनों स्टेप का नाम बता सकते हो, क्या क्या स्टेप है अमेंडमेंट के? स्टेप्स ऑफ अमेंडमेंट, अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन के कोई कानून को बदलना है तो हमको क्या प्रोसेस अडॉप्ट करना है अमेंडमेंट के, बता सकते हैं? प्रोसेस 1, पहला का नाम है सिंपल मेजोरिटी। पहला का नाम है सिंपल मेजोरिटी। Simple majority means all the members of the parliament. All the members of the parliament means both houses of the parliament. The houses have Rajya Sabha and Lok Sabha. So all the members will vote and decide who has got more vote. जिनके फेवर में ज्यादा वोट होगा उनका डिसीजन मान लिया जाएगा। वेरी गुड, सक्षम जो है वो टाइप कर दिया है तीनों प्रोसेस। एक हो गया सिंपल मेजोरिटी। लेकिन हमारे देश में इतने डाइवर्सिटी है, इतने पॉलिटिकल पार्टीज है कि सिंपल मेजोरिटी से कोई फैसला नहीं होता है। सिंपल मेजोरिटी स्कूल में दिखता है, बच्चा यस नो करता है। अगर पूछा जाए गेम्स पीरियड जाना है, क्या आंसर आएगा? गेम्स पीरियड जाना है तो क्या आंसर आएगा, यस कि नो? चलो यस यस आ रहा है सभी का। ये हो गया सिंपल मेजोरिटी। क्वेश्चन सुने और तुरंत फैसले कर दिए कि गेम्स पीरियड जाना है, तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी हो गया। जितने बच्चे रहेंगे वो यस में बोल देते हैं कि हाँ सर जाना है। चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा गेम्स पीरियड किसी और को ट्रांसफर कर दोगे। 8G को गेम्स पीरियड जाना था और वो जो है 8F को दे दिया जा रहा है, बदले में 8G जो है वो क्लास में पढ़ाई करेगा। यहाँ सब मिलके बोल रहे हैं नो, एग्री नहीं हो रहे हैं। नहीं सर नहीं ट्रांसफर करेंगे, हम लोग अपना गेम्स पीरियड दूसरे को ट्रांसफर नहीं करेंगे। यहाँ भी मेजोरिटी बन गया। यहाँ तुम लोग सब मिलके एक साथ डिसाइड किए नहीं सर गेम्स पीरियड नहीं देंगे। तो ये हो गया एक तरीका। पार्लियामेंट में भी सिंपल मेजोरिटी में कोई कानून को रखना है कि उसको चेंज करना है तो वहां पे भी यस नो मांगा जाता है, ओपिनियन मांगा जाता है और वोटिंग कराए जाते हैं। जिनके फेवर में ज्यादा वोट होगा वो जो है डिसीजन हो जाएगा। अब जो दूसरा वाला है वो है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हो गया कि इन लोगों को जितने मेंबर प्रेजेंट है, जितने मेंबर होते हैं 100% अटेंडेंस होता नहीं है। जब 100% अटेंडेंस नहीं होता है, ये लोग सब दिल्ली नहीं जाते हैं, तब जितने मेंबर प्रेजेंट है उन लोगों को वोट देना है और उसमें मेजोरिटी लाना है और 2/3 का वोट होना चाहिए। एक तो हो गया 2/3 ऑफ द वोट। इनको कम से कम बहुमत लाना है, 2/3 ऑफ द members who are present voting, and they must get the share equal to 2/3 proportion। तो 2/3 कितना होता है देखते हैं। चलो तो 550 का 2/3 निकालो। ये हो गया लोकसभा। लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर 550 है, इंटू 2 डिवाइड बाई 3। जितना नंबर होगा वो हमको आंसर हो गया मेरा। ये एक हुआ। दूसरा हो गया राज्यसभा। राज्यसभा में 250 है मेंबर, इंटू 2/3। ये अगर टोटल मेंबर 250 है, इंटू 2/3 कर देंगे, जो आंसर आएगा
वो फिगर, और यहाँ पे भी 550 इंटू 2/3 कर देंगे, वो फिगर जो है हमको एक आइडिया दे देता है कि हमारे कंट्री में कितने टोटल मिनिस्टर है, लोकसभा और राज्यसभा मिला के, और ये लोग वोट देंगे तो हमको कितना संख्या लाना होगा। हाँ गुड, 750/3 इक्वल्स टू, अरे 750 कैसे कर दिया? 550 इंटू 2 करो, 550 इंटू 2 कितना होता है? 1100 एंड 1100 डिवाइड बाई 3, एक तो यहाँ ये हो गया, और ये 500/3 एक और इधर ये हो जाएगा। ये कैलकुलेटर में अपना मोबाइल में इमीडिएट कैलकुलेशन कर लेना। हम केवल अभी तुमको रफ आइडिया दे रहे हैं कि ये वोट कैसे, और ये 2/3 मतलब कैसे समझते हैं। थर्ड वाला है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। थर्ड वाला है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन। चलो अभी जो है क्या हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? यस या नो तुम बताओ, क्या हिंदी राष्ट्रभाषा होना चाहिए? चलो, जितने बिहार के बच्चे हैं यस बोल रहे हैं, तुमको लगता है तमिलनाडु यस बोलेगा? क्या तमिलनाडु तमिल छोड़ के यस बोलेगा? क्या पंजाब मान लेगा? क्या महाराष्ट्र मान लेगा? अब तुम सोचो कि कैसे वोट कम होता है, कैसे वोट यस में आता है। कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिसमें वोट तुरंत जो है सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी में हमको आंसर मिल जाता है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें जो है हमको पता नहीं चल पाता है होगा कि नहीं होगा। जैसे ही हिंदी राष्ट्रभाषा करनी है तो बहुत सारे स्टेट है वो ना कर देंगे, उनके मंत्री लोग वहां पे वोट नहीं देंगे। अब बीजेपी के ही मंत्री है, बिहार वाला यस बोलेगा, और बीजेपी का ही मंत्री तमिलनाडु वाला नो बोलेगा। कांग्रेस वाला जो है, कांग्रेस का दिल्ली का मेंबर यस बोल देगा, और कांग्रेस का अगर मान लो कोई केरला में है तो वो नो बोल देगा। तो ये वोटिंग होते रहता है, और ये प्रोसेस में रहता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और लास्ट में रेटिफिकेशन है हमारे पास। मान लो 28 स्टेट्स है, सपोज रेटिफिकेशन क्या होता है, देयर आर 28 स्टेट्स। इसमें से 28 से अगर मान लो 14 हुआ, फिर जो है इसका हाफ 28 का हो गया, 14 हाफ हो गया, यानी 14 राज्य जो है फेवर में बोल सकते हैं, 14 राज्य फेवर में नहीं भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर 14+1 हो गया तो हमको 15 वोट मिल गए, मतलब मेरा रेटिफिकेशन मेरे फेवर में आ गया। मान लो इंडिया के 15 राज्य मान लेते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, तो यहाँ रेटिफिकेशन प्रोसेस सपोर्ट में आ गया। इज इट क्लियर? तब पार्लियामेंट में जितने लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हैं उसके बाद स्टेट असेंबली के पास भी भेजा जाता है। हाँ, स्टेट असेंबली जैसे बिहार है, यूपी है, उन लोगों के पास भी भेजा जाता है मैटर को, और हर स्टेट का असेंबली फिर वोटिंग करवाता है और यस नो करके उसका रेटिफिकेशन करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वो XYZ के स्टेट के सीएम कौन है, अब तो वो नहीं हम बता पाएंगे। सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश YSR है कोई, KS राव है, सकता है तेलंगाना और आंध्रा, हम भी कंफ्यूज है, देख लेना नेट में मिल जाएगा। ठीक है, आंध्रा का सीएम और तेलंगाना दोनों पहले एक ही राज्य हुआ करता था। जगन मोहन रेड्डी हो सकता है, अमन कुमार बोल रहे हैं, नेट में मिल जाएगा। और ऐसे ही तुम लोग जो है जानकारी इकट्ठा करते रहो। तो ये टॉपिक जो है आज हम लोग अमेंडमेंट के प्रोसेस थोड़ा डिस्कस किए हैं, और हम लोग जो है थोड़ा बहुत जो बचा हुआ टॉपिक है वो स्कूल में भी पढ़ेंगे, और
यहाँ पे भी ऑनलाइन भी डिस्कस करेंगे। अब पेज नंबर 189 देखोगे तुम लोग। 189 में एक टॉपिक है। यस नो पहले एक्नॉलेज करो। 189 पेज नंबर। Main features about India is that we have sovereignty, which means we are able to rule our country with our own leaders. ठीक है, मेरे घर में हम क्या फैसला लेंगे वो हम समझेंगे। हमको बाहर से मदद और हस्तक्षेप दोनों नहीं चाहिए। रसिया, अमेरिका, चाइना, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस ये हमको नहीं मशवरा दे, नहीं सलाह दे कि हमें अपने देश में क्या करना है, कैसे चलना है। ये हो गया sovereign. So it is self rule. India is very much capable to carry out its own decision with responsibility and integrity and accountability. दूसरा है सोशलिस्ट। हम लोग समाजवादी देश है, हम समाज व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हमारे कंट्री में कोई भी आता है और हमारे सामाजिक तौर तरीके को अपनाना चाहता है और रहना चाहता है हमारे देश के नियम के मुताबिक, तो वो रह सकता है। फैमिली वैल्यूज है, रिलीजियस वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, ये सब हमारे सोसाइटी का और हमारे समाजवादी जो ये है, सभी बराबर है, सबको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, फेथ, ये सारे चीजें जो है सोशलिस्ट आइडियल्स है एंड फीचर्स है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज सेक्युलर। इसका मतलब है हमारे कंट्री में अगर हम मंदिर जाना चाहते हैं तो हम स्वतंत्र है, हम मंदिर जाएंगे भाई। सुबह जाना चाहते हैं सुबह जाएंगे, शाम को जाना चाहते हैं शाम को जाएंगे। हम दूर से प्रणाम करना चाहते हैं तो हम दूर से प्रणाम कर सकते हैं। किसी को मस्जिद जाना है वो सुबह जाए शाम को जाए, वो स्वतंत्र है, वो मस्जिद जा सकता है। किसी को चर्च जाना है वो चर्च जा सकता है। तो सेक्युलर मतलब कोई भेदभाव नहीं है धर्म के मामले में। अगर गवर्नमेंट जॉब है और वहां 3 गो नाम है, एक हिंदू नेम है, एक मुस्लिम नेम है, एक क्रिश्चियन नेम है, तो हम हिंदू को सिलेक्ट कर रहे हैं और मुस्लिम और क्रिश्चियन को नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम अनसेक्युलर हो गए। लेकिन मेरे कंट्री में, इंडिया में, एक मुस्लिम को भी अपॉर्चुनिटी है सिलेक्शन होने का, एक क्रिश्चियन को भी अपॉर्चुनिटी है सिलेक्ट होने का। क्या आईपीएल में कुछ मुस्लिम प्लेयर्स खेलते हैं? आईपीएल में मुस्लिम प्लेयर्स खेलते हैं ना। तो इसका मतलब सिलेक्शन होता है प्रोपोर्शनेटली, उनको भी अपॉर्चुनिटी है। कुछ क्रिश्चियन प्लेयर्स भी है, कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी है। जो लोग क्रिश्चियन है वो होटल शेयर कर रहे हैं, फील्ड शेयर कर रहे हैं, कोच शेयर कर रहे हैं, एक साथ पार्टी मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भेदभाव नहीं मिलता है हमारे देश में। और धर्म के मामले में जो है हमारा कंट्री जो है न्यूट्रल है। धर्म इंडिया का कोई भी अपना राज्य का या इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से कोई रिलीजियन मानने का कोई जो है आदेश भी नहीं है और ना कोई सपोर्ट या डिस्क्रिमिनेशन है। भारत सरकार धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्म को बराबर नजरों से देखता है, सभी को बराबर मौका यहाँ है। तो ये हो गया सेक्युलर। नेक्स्ट फीचर हो गए डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट फीचर इज democratic, which means that people in our country are free to become a candidate, to free to contest election, free to give their vote to any person of their choice or party or preference. ये फ्रीडम है। तो डेमोक्रेसी में हम खुद वोट दे सकते हैं, हम खुद कैंडिडेट बन सकते हैं, जीत जाने के बाद हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। ये सारी चीजें जो है डेमोक्रेसी के फीचर्स है। लास्ट वाला है रिपब्लिक। इंडिया हैज बिकम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1915। हम अपने कंट्री में प्राइम मिनिस्टर भी रखे हैं और प्रेसिडेंट भी रखे हैं। तो हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां कॉमन पीपल जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनता है, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस अभी बताए थे ना, लोकसभा और राज्यसभा मेंबर, जितने मिनिस्टर है वो लोग चुनाव फिर से करते हैं और वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारे कंट्री में राष्ट्रपति का चुनाव कॉमन पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको चुनते हैं।
ठीक है। फेडरेशन जो है वो भी बताएंगे। हमारे कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और पंचायती राज है। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तीनों को पावर दिया गया है। विलेज पंचायत भी है और नगर पंचायत भी है, नगर निगम भी है, साथ में राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है। इन सभी व्यवस्था में आम आदमी को बहुत सुख सुविधा ही मिला है। आम आदमी को सुनने वाला प्रतिनिधि बहुत संख्या में मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे हो गए मेन फीचर्स अबाउट ऑफ आवर कंट्री, जिसको इंडिया इज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोल रहे हैं। ठीक है, अब बुक भी पढ़ लेंगे। हेरिडिटरी मतलब हो गया खानदानी, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई परंपरा चली आ रही है तो उसको हेरिडिटरी बोल सकते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा ही बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, कोई चुनाव नहीं है, तो ये हो गया हेरिडिटरी सिस्टम। तो हमारे कंट्री में जो है वंश वंश या वंशानुगत कोई ये नहीं है। चुनाव होते हैं और चुनाव में जो भी जीतेगा उसको ही देश चलाने का मौका है। वेरी गुड। और नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये ब्रिटेन का ही पार्लियामेंट है जो हमारे कंट्री में चलता है। नाम बदल के हम लोग उनको इंडियनाइज्ड वर्जन बना लिए हैं। इसमें लोगों को चुनाव के मौके है, चुने गए प्रतिनिधि हमारे देश को शासन करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, और इसमें लोकसभा राज्यसभा है। यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लैंड में जाएंगे तो उनके भी पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा का उनका नाम है, उनका कंट्री का ओरिजिनल नाम है। हम लोग इनको अपने कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा बोलते हैं। उनके यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन है। हाउस ऑफ कॉमन मीन्स लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड मीन्स राज्यसभा। तो हमारे कंट्री में भी लोकसभा राज्यसभा उन्हीं के जैसा डिजाइन में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट है फेडरल एंड यूनिटरी। तो पूरा भारत में 28 राज्य है, सारे राज्यों के पास पावर होते हुए भी एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। तो वन इंडिया है इन स्पाइट ऑफ हैविंग 28 स्टेट्स, सो इट इज यूनिटरी। सारे 28 राज्य होते हुए भी वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, सारा का सारा मिलके ही भारत है। तो ये हम लोग क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल जानेंगे। अभी बाय बाय बोल देते हैं, ये क्लास डिस्कनेक्ट होने वाला है।